हम लोग बोलते हैं इंडिया इज अ कंट्री एंड आई एक्सपीरियंस इंडिया, बट वी आर नॉट एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग द कंट्री, वी आर Yeah, एक्सपीरियंसिंग it's landscapes, languages and symbols. people who have traveled the entire country, they haven't touched everything, every Because part. India So, as a full does not exist in reality, it's just a social construct inside of our mind. That's why we yeah. cannot Wow. experience India as a whole. मैं महाराष्ट्र में हूं, ये कनाडा में है. फॉर बोथ ऑफ अस हिमाचल डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इट इज नॉट इन आवर अवेयरनेस. बट वो हिमाचल है बिकॉज वहां पे लोग हैं. जब तक वहां पे एक चीटी भी रहेगी ना, उसके लिए वो एग्जिस्ट करेगा. जब तक ऑब्जर्वर है तब तक ऑब्जर्वेशन होता रहेगा. मतलब द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऋषि मुनि एंड साइंस इज कि साइंस क्या करता है. साइंस, सिंस साइंस इज एक्सटर्नल, इट इज ऑल वेस्टर्न, तो वो हमेशा बाहर ही गए एक्सप्लोरेशन में. तो साइंस क्या करता है कि मुझे अगर कुछ मेजर करना है तो मैं उसके लिए एक डिवाइस बनाऊंगा, फिर उस डिवाइस से उसको मेजर करूंगा, फिर मैं वो कंसिस्टेंसी आती है कि नहीं उसमें देखूंगा उस एक्सपेरिमेंट्स में, एंड देन आई विल प्रूव माय थीसिस. बट ऋषि मुनि सेड नो. ऋषि मुनि सेड कि आई डोंट नीड टू मेक अ न्यू डिवाइस. This is the device. Whatever you call the world, yeah, we say कि the universe exists, the planets exist, society exists, the world is out there, right? This is what we say. But let us, अगर awareness primary है, जिसके अंदर ही सब हो रहा है, तो फिर ये जो हम लोग बोलते हैं बाहर की चीज, the world, ये क्या है? Is the question. क्योंकि हम जब बोलते हैं तो हम बोलते हैं ना कि the world exists, the universe exists, societies exist, right, the world is out there. right. But now let us slow down and examine what we actually experience. अभी तक हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया है कि awareness comes first, everything else is known through the awareness. Right? Now we move to the next layer of examination. If awareness is primary, what exactly are we referring to when we say the world? We often speak about the world as if it stands independently, solid and fully formed outside of us. Now this is very interesting. ये मैंने इसके बारे में सटली बात की है पहले भी हमारे इसमें. तो अगर अवेयरनेस सबसे पहले आता है, एवरीथिंग एल्स इज नोन थ्रू द अवेयरनेस, तो फिर व्हाट एग्जैक्टली आर वी रेफरिंग टू व्हेन वी से द वर्ल्ड? तो यहाँ पे हम लोग जब ऐसा बात करते हैं कि द वर्ल्ड, तो हमारा एक ऐसा इमेजिनेशन होता है कि द वर्ल्ड स्टैंड्स इंडिपेंडेंटली, सॉलिड एंड फुल्ली फॉर्म्ड. मतलब हमें ऐसा लगता है कि जो वर्ल्ड है ये ऐसा है, ये सेपरेटली है, प्लस ये मैं हूं जो यहाँ इस वर्ल्ड के ऊपर है कहीं पे, तो इन दिस यूनिवर्स. Right. So this is what. So the world basically appears as a plane, as a surface where we are present and we are interacting with it. Whatever you call the world, yeah, we say कि the universe exists, the planets exist, society exists, the world is out there, right? This is what we say. Right. Right. But let us, क्यों अगर अवेयरनेस प्राइमरी है जिसके अंदर ही सब हो रहा है, तो फिर ये जो हम लोग बोलते हैं बाहर की चीज, द वर्ल्ड, ये क्या है? इज द क्वेश्चन नाउ. क्योंकि हम जब बोलते हैं तो हम बोलते हैं ना कि द वर्ल्ड एग्जिस्ट, द यूनिवर्स एग्जिस्ट, सोसाइटीज एग्जिस्ट, Right. द वर्ल्ड इज आउट देयर. Right. बट नाउ लेट अस स्लो डाउन एंड एग्जामिन व्हाट वी एक्चुअली एक्सपीरियंस. When we say the world, what do we truly encounter? We encounter colors. When we say world, we encounter what? Colors, shapes, sounds, textures, sensations, thoughts about these sensations. We never experience the universe directly. This universe, whatever we are calling, we are not experiencing this universe directly as a object.
We are not experiencing it directly as an object. We experience visual fields, we experience sensory inputs from our senses, touch, taste, Mhm. smell, all of these. And we Right. experience interpretations formed by the mind. Yeah. Even if just an example, we see things, right? We visualize, and through the sense of sight, हमारी eyes और से जो image retina में बनती है, that is not, our eyes is not responsible for the images we see. It's the brain that actually processes that Correct. image and Correct. show us कि क्या है ये. फिर हमारी understanding बनती है, okay, that's the laptop. Exactly. Exactly. So we are never experiencing the universe or the world as a whole. We are only what we call the world is basically this visual field, this sensory inputs, and the interpretation that is made by the mind of all these inputs. So even when we look at the stars in the night sky, we are not directly experiencing the star itself. We are experiencing light striking the eyes, neural processing, perception forming inside of our awareness. The star as we conceive it is a model constructed from interpretation. और हमने जो इतने भी सारे डॉक्यूमेंट्रीज और जो भी एनिमेटेड इमेजेस और वो सब हमने बनाया हुआ है, दैट इज इनसाइड ऑफ आवर हेड एंड दैट इज व्हाट इज कंस्ट्रक्टेड इनसाइड when we see a star, but it is just a light striking our eyes. Right. अभी आप ये तो नहीं बोल रहे ना कि that star is not real. That is there, right? That is there. This does not make it false. This does Right. not make it false. It simply means what we call world is already filtered. Right. It is filtered through our awareness and our senses. If we close our eyes, the visual world disappears. Yeah. Right? आंखें बंद, दुनिया गायब. If we block our ears, sound disappears. If we lose sensation, touch disappears. जब बॉडी नम हो जाती है, टांगे नम हो जाती है, Yes. we can't feel anything, right? Yes. तो that even though टांगे से टच हो रही है जमीन या दूसरी टांग, but we can't feel it. feel it. Yes. Yeah. So, but awareness does not disappear. You are aware कि you are not feeling your leg. Yeah. You are 100%. समझ गए? तो 100%. Yeah. तो अगर आंखें बंद भी की, ये दुनिया मुझे दिख नहीं रही, बट फिर भी आई एम अवेयर कि देयर इज दिस डार्कनेस. अगर कान बंद कर दिए, आवाज बंद हो गई, बट आई एम अवेयर कि आवाज बंद हो गई है. वो आवाज इसीलिए है क्योंकि ये कान मेरे सुन रहे हैं. जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? अगर नाचा भी होगा तो देखने वाला अगर नहीं रहेगा तो इट डज नॉट मैटर. ये दिस एग्जांपल रिमाइंड्स मी ऑफ एक जंगल में किसी बीहड़ में एक कोई पेड़ है, वो गिरा, वो गिर गया नेचुरली, लेकिन आई सॉ इट, राइट? तो गिरा, इट वाज एन इंसिडेंट. अगर मैं वहां नहीं होता और तब पेड़ गिरता, हु नोज? करेक्ट. गिरा भी नहीं गिरा, नोबडी केयर्स, या नोबडी गिरा, नोज, आवाज आई, nobody knows. कुछ भी नहीं. या अभी भी कोई पेड़ गिर रहा है, वी डोंट नो. वो हमारे लिए इट डजंट हैपन. राइट. हमारे एग्जिस्ट अवेयरनेस में वो चीज नहीं है. नहीं. करेक्ट. Yeah. So, but awareness does not disappear. So what we call world is always dependent on sensory experience, and sensory experience is dependent on our awareness. समझ गए? तो राइट. या तो अगर सेंसेस हमारे कुछ बंद भी हो गए, पांचों सेंसेस में से अगर कोई सेंस काम भी नहीं कर रहा है, बट अवेयरनेस है जो हमेशा रहता ही है, इट डज नॉट डिसअपियर. क्योंकि जैसे हमने देखा, आंखें बंद की तो विजुअल वर्ल्ड डिसअपियर हो गया, कान बंद कर दिए तो साउंड डिसअपियर हो गया, सेंसेशन
अगर हम लोग सेंसेशन लूज करते हैं तो टच भी डिसअपियर हो जाता है, बट सबके Right. पीछे एक अवेयरनेस जो है वो कभी नहीं डिसअपियर होता. Right. Right. So basically what world we are calling is basically the sensory experience that we have. It is a sensory This experience. Yeah, this thing reminds me of a music video. I don't know आपने सुना है या व्यूअर्स ने सुना है, by Metallica. एक सॉन्ग है उनका वन नाम है उस ट्रैक का. तो उसकी म्यूजिक वीडियो में एक आर्मी मैन बताया हु हैज़ फॉट इन अ वॉर, वर्ल्ड वॉर 1 आई थिंक, और उसको बहुत ही तगड़ी इंजरी हुई. इंजरी क्या मतलब, ही इज ऑलमोस्ट डेड बट नॉट रियली. Hmm. He has lost his both of his arms. He has lost both of his legs. He can't hear anymore. He can't talk anymore. His eyes don't work. और basically सारी senses उसकी खत्म हो चुकी हैं. But he can feel the pain. He's still suffering क्योंकि he's there in the hospital. He hasn't died yet. So He hasn't died, the song मतलब is he is about aware. that. He's aware of He's his still suffering. aware. Exactly. उसके Even though पूरे हाथ our primary गए. senses. Yes, correct. हाँ. This is the perfect example जो तुमने बताया कि जो वर्ल्ड, जो दुनिया हम एक्सपीरियंस करते हैं, तो जो भी दुनिया है वो उसके सारे सेंसरी ये चले भी गए, कट भी गए, उसको ही वॉज नॉट एबल टू सी, हियर, सेंसेस भी गए, बट देयर वॉज समथिंग अवेयर बिहाइंड दैट बॉडी. दैट अवेयरनेस डिड नॉट गो. Right. जो आदमी जब कोमा में भी जाता है ना, तो कोमा में भी वो सब उसका बंद हो जाता है, हाँ. बट वो अवेयर रहता है, वो अवेयरनेस नहीं रहता. Wow. बिकॉज वंस यू लूज अवेयरनेस मीन्स यू आर डेड. You're dead. या. And we don't know yet what happens after that. Yes. So that's a mystery. Yes. So what we call the world is always dependent on our sensory experience. Without this sensory experience, we cannot define the world, or with lack of this sensory experience, the world might appear to you differently. Correct? Right. तुम्हें क्या बोलते हो, कलर का ये होता है, कलर ब्लाइंडनेस है अगर किसी को, Right. Right. तो उसको आलोक अलग को है. दिखेगा. राइट. तो आलोक को अलग तो दिखेगा. उससे मैं बात कर रहा था एक दिन ग्रीन कलर की और ग्रे कलर की. उसको ग्रे दिखता है किसी में. ओके. So that's, I can't even imagine like how he sees the world. Yeah. या. तो अगर हम लोग बोल रहे हैं कि सेंसरी एक्सपीरियंस है, करेक्ट. द वर्ल्ड इज अ सेंसरी एक्सपीरियंस. और हमने क्या देखा, एक्सपीरियंस कहां पे आता है? एक्सपीरियंस आता है अवेयरनेस के अंदर. तो जो भी वर्ल्ड, जिसको हम लोग वर्ल्ड बोलते हैं, दैट इज एक्चुअली एन एक्सपीरियंस अपियरिंग इनसाइड ऑफ आवर अवेयरनेस. Right. It is not some independent entity that exists outside of us. So, because the external world as we know it collapses into perception. Because अवेयरनेस के अंदर एक सेंसरी एक्सपीरियंस हमें मिल रहा है. उस वो एक्सपीरियंस को हम लोग लाइफ बोलते हैं. बट द एक्सटर्नल वर्ल्ड एज वी नो इट कोलैप्सेस इनटू जस्ट अ परसेप्शन. जो बाहर की दुनिया है, जिसको हम बोलते हैं ये दुनिया है, जो भी हम लोग देख रहे हैं, ये बनता है. दिस इज द यूनिवर्स. बिकॉज यू आर अवेयर, बिकॉज ऑफ अवेयरनेस, द यूनिवर्स is a sensual, क्या वर्ड था वो, sensory universe. The world is a sensory experience that happens inside of awareness, and that closes the world into the universe into a perception. Because whatever you feel and sense through an experience is perceived through your awareness. Right. What you call life. And that is the perception. Because we never experience, because we never experience the full country. हम लोग बोलते हैं India is a country and I experience India. But we are not actually experiencing the country. We are experiencing landscapes, languages and symbols. Right. और जिसको हम कंट्री प्रैक्टिकली बोलते हम हैं. गए भी नहीं हर पार्ट में.
Correct. We haven't touched a single, even people who have traveled the entire country, they haven't touched everything, every Because part. India So, as a full does not exist in reality. It's just a social construct inside of our mind. That's why we yeah. cannot Wow. experience India as a whole. We will at any given point of time always experience different landscapes, different languages and different symbols. Hmm. लैंग्वेजेस हो बदलेंगी, जो भी हो सिंबल्स ही बोलेंगे उसको, जो भी लिखा हुआ है या जो भी, वी आर ऑलवेज एक्सपीरियंसिंग दिस, एंड फ्रॉम दैट when I am experiencing mountains, snow, and cool breeze, so then I will say कि I am experiencing Himachal, because that is a Hmm. construct that landscape and that language and that symbols will tell me that this is Himachal. Right. So there is no such thing as Himachal because I cannot experience Himachal as a whole. I can only experience that particular space inside of my awareness, which we have given names. We will never experience a border. We experience agreements and maps. Right. We Just never. to clear यहाँ पे, I'm sure viewers थोड़े वैसे बोलेंगे कि क्या बात हो रही है, क्या बात कर रहे हो, हिमाचल एग्जिस्ट नहीं करता, इंडिया एग्जिस्ट नहीं करता. So we are not talking about how things have made by people. We are talking about our experience, our perception of the world. तो उसके हिसाब से it's a construct. Yes. हम हिमाचल एंटर करते हैं, how we know we have entered हिमाचल, क्योंकि we perceive, हमें दिखता है, हमें पता है, हमें सिखाया गया है. So that is a construct and it happens within our awareness. Awareness नहीं होगी तो we won't know करेक्ट कि क्या हिमाचल है, क्या है. और हिमाचल भी जब तुम जाओगे, जब हम बोलता हूँ हिमाचल गए, तो तुम हिमाचल में वो रास्ता, वो गली, वो एरिया, वो पहाड़, वो ट्रैक एक्सपीरियंस किए तुमने. बट हम कहने के लिए कहते कि आई हैव एक्सपीरियंस्ड हिमाचल, बट टेक्निकली यू कैनॉट एक्सपीरियंस द फुल हिमाचल, जो हम जिसको हिमाचल बोलते हैं, बिकॉज इट इज अ कॉन्स्ट्रक्ट. Right. इट इज अ कॉन्स्ट्रक्ट construct. मेड फॉर अंडरस्टैंडिंग. तो एंड दैट इज एक्सटर्नल. देन वी नेवर एक्सपीरियंस सोसाइटी. हम जिसको बोलते हैं हमारी सोसाइटी है, बट वी नेवर एक्सपीरियंस अ सोसाइटी एज अ होल. We only experience It's not one entity. It's not one entity. Yes, we experience interactions, conversations, and behaviors of people. Yeah. इसको ना जिसको हम हम society कंप्यूटर बोलते साइंसेस में, क्लाउड इंजीनियरिंग में इसको हम वर्चुअल रिसोर्स कहते हैं. वर्चुअल रिसोर्स या रिसोर्स यूनिट दैट is not physically present. It's just a virtual group of certain things. कि उसको बस एक बना दिया है समझने के लिए कि क्या है ये. It doesn't exist. Right. रियलिटी में वो उसका कोई जैसे लैपटॉप नहीं है, वो कोई सर्वर नहीं है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगे. इट्स जस्ट अनरियल. बट वो है दिमाग को थोड़े से समझाने के लिए कि ओके ये चीजें हैं. Right. So this is also similar to that. These larger structures are conceptual frameworks. These are all society, country, border, state, district. These are all societal. These are all structures for, and these structures are conceptual frameworks. They are useful. They organize our human life, and they are built. They are all built upon perception. एक सोसाइटी कैसी है, ये हम हमारे परसेप्शन से डिसाइड करते हैं. इट कैन नॉट बी सेम फॉर एवरीवन. करेक्ट. तो परसेप्शन हमारा, हमने लास्ट टाइम भी ये बात किया था कि व्हाट इज परसेप्शन. परसेप्शन इज मेमोरी प्लस इमेजिनेशन. Memory Two or things that our mind is our mind is only capable of doing. Only. Yes. Yeah. इंटेलेक्ट भी इसी में मतलब वो आता है, इसी के थ्रू काम करता है. करेक्ट. तो ये मेमोरी और इमेजिनेशन से बनता है अपना परसेप्शन. और जो यूनिवर्स जिसको हम बोलते हैं, जो यूनिवर्स है पूरा, जिसको हम कभी इंडिविजुअली पूरा एज अ होल एक्सपीरियंस नहीं कर सकते,
It is just a perception of our what is taught to us in our memory, and from whatever we can imagine from that memory becomes the perception. And this perception, Right. मतलब ये जो यूनिवर्स है जिसको मैं यूनिवर्स बोलता हूं, मेरे फॉर मी और फॉर यू is merely a perception of your memory and is merely a perception of your awareness. Hmm. तो दुनिया Yeah. ऐसी है ये कोई नहीं बोल सकता. It is just a perception of your awareness. क्योंकि बिकॉज ऑफ योर अवेयरनेस तुमने बहुत कुछ मेमोरी इकट्ठा कर ली है, और अब इस मेमोरी के बेसिस पे से हिमाचल में गया, हिमाचल तो मैं हिमाचल गया तो उसकी एक मेरे पास मेमोरी है. अभी फिर उस छोटी सी जो भी मैं गांव गया हूँ उसका कोई विलेज विजिट किया होगा, एक दो जगह पे मैं गया होगा, उससे मेरी मेमोरी बनी. अब मैं उस छोटी सी मेमोरी से पूरे हिमाचल को इमेजिन कर रहा हूं, उससे बना मेरा परसेप्शन हिमाचल का, जो कि 100% सच नहीं है क्योंकि मैं पूरा हिमाचल देख ही नहीं सकता. एक सिर्फ हम एग्जाम्पल दे रहे हैं हिमाचल का, बट दिस इज फॉर लाइफ. आवर लाइफ इज ऑल्सो परसेप्शन ऑफ आवर मेमोरी. मेमोरी और इमेजिनेशन से हम एक परसेप्शन क्रिएट होता है जिसको हम लाइफ बोलते हैं, विच इज नॉट ट्रू इन 100% ऑफ द टाइम. हाँ, तुम कुछ बोल रहे थे. या वी पार्शियली नो इट. मैं ना ये जो आपने एग्जांपल दिया, मेरे माइंड में एक और आया एग्जांपल, जिक्सॉ पजल का. बहुत बड़ी पजल के बहुत सारे पीसेज हैं, 500-1000 पीसेज हैं. उसमें हमने 50 जोड़ लिए, बना लिया कुछ, और खुश हो गए कि यार दिस इज इट, ये तो एलिफेंट ही है. बट वी डोंट नो कि पूरी पजल का क्या पिक्चर बनेगी, राइट? बट हमने बना लिया तो हमारा परसेप्शन उतना ही है. तो द पॉइंट हियर आई थिंक व्हाट यू वर ट्राइंग टू से इज कि वी डोंट नो द फुल पिक्चर as individuals. We think we know, but that's not true. No, whatever you know is not the full truth. Full truth, yeah. और ये नहीं बोल रहे कि हिमाचल doesn't exist, मतलब false नहीं है वो. Gravity है, there are rules of nature, they are true. But we are talking about our existence and our transaction with the world. And वो क्या है, वो कहाँ है, awareness क्या है उसकी. मतलब कैसे, फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ इन दिस मोमेंट मैं महाराष्ट्र में हूं, ये कनाडा में है. फॉर बोथ ऑफ अस हिमाचल डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इट इज नॉट इन आवर अवेयरनेस. बट वो हिमाचल है बिकॉज वहां पे लोग हैं. जब तक वहां पे एक चींटी भी रहेगी ना, उसके लिए वो एग्जिस्ट करेगा. जब तक ऑब्जर्वर है तब तक ऑब्जर्वेशन होता रहेगा. से दुनिया में वहां पे कोई भी जीव नहीं है यार. देयर इज नथिंग अवेयर ऑफ दैट एनवायरमेंट. तो फिर देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि वहां पे कुछ ना हो, बिकॉज बट ऐसा होता नहीं है. फॉर एग्जाम्पल रशिया में कोई बीहड़ में, जहाँ कोई, रशिया क्या, मंगोलिया लेट्स से, जो वो स्टेप करके एरिया है, रीजन है, राइट? वहां पे कोई गांव नहीं है, कोई कुछ नहीं है. तो वी डोंट नो, फॉर अस इट डजंट एग्जिस्ट इन दैट सेंस, क्योंकि परसेप्शन ही नहीं है वहां का. हमारी अवेयरनेस में कोई एक्सपीरियंस ही नहीं ना, हमने ज्यादा सुना है उसके बारे में. तो वी डोंट केयर अबाउट इट, और इट डजंट रियली एग्जिस्ट. उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसमें. करेक्ट, दैट्स अ पॉइंट, राइट? यस यस. तो अभी तक हमने क्या क्या देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी चीज जो है वो अवेयरनेस है. करेक्ट. तो अवेयरनेस मतलब जो अवेयरनेस है, उस अवेयरनेस के अंदर हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ, दैट हैपन्स इनसाइड ऑफ अवेयरनेस. सो अवेयरनेस इज द बेसिक थिंग जिससे सब कुछ ये होता है, जिसको हम दुनिया बोलते हैं. जो वर्ल्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट वर्ल्ड इज ऑल्सो प्रोजेक्शन, परसेप्शन ऑफ ये. तो जो जब हम यूनिवर्स को देखते हैं एज अ होल, मतलब द एक्सटर्नल वर्ल्ड फ्रॉम, तो एक्सटर्नल वर्ल्ड कहाँ कोलैप्स हो जाता है? फ्रॉम यूनिवर्स से वो कोलैप्स हो जाता है टू परसेप्शन, जिसको हम यूनिवर्स बोलते हैं. जो एक वर्ड है सिर्फ, जो हम पूरे तरह से उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, वो कोलैप्स हो जाता है परसेप्शन पे, राइट? तो एक्सटर्नल वर्ल्ड बेसिकली इज जस्ट योर ओन परसेप्शन, हाउ यू फील एंड लुक एंड एक्सपीरियंस दैट. ये हो गया. तो सबसे पहले तो क्या
हमने किया सबसे पहले हमने डिसाइड किया, एक बार रिकैप करता हूं मैं। द वर्ल्ड इज, पहले हमें लगता था कि Yep. द वर्ल्ड इज प्राइमरी, वी आर सेकेंडरी। फिर हमें समझा कि अवेयरनेस सबसे पहले आता है, एक्सपीरियंस, नेचर ऑफ एक्सपीरियंस ही ऐसा है कि अवेयरनेस कम्स फर्स्ट, और फिर उसके अंदर, अवेयरनेस के अंदर एक्सपीरियंस आता है, राइट। फिर हमने Right. समझा कि उस अवेयरनेस में ही हमें पूरा दुनिया दिखती है, जिसको हम द वर्ल्ड बोलते हैं, और हमें लगता है कि इट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अस। तो वो कुछ हमसे डिफरेंट नहीं है, मतलब ये दुनिया है और उसमें मैं हूं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले है तुम्हारा अवेयरनेस हो, और उस अवेयरनेस में तुम्हें पूरा ये सब कुछ एक्सपीरियंस होता है, पूरे दुनिया, यूनिवर्स जिसको तुम बोलते हो। तो बेसिकली व्हेन योर अवेयरनेस इज एक्सपीरियंसिंग द होल वर्ल्ड, it collapses to a perception, because you cannot as a whole watch the full entire universe. So basically universe becomes perception, universe collapses into your own perception. तो तुम्हारे लिए इंडिविजुअली एज अ पर्सन वी cannot see the whole world, so it is all drops down to collapses to perception, because ये Now, सब कुछ I हम think लोग most perceive people करते would be thinking कि अब इसका क्या करें, मतलब what should we do about this? ये जो understanding है perception की, awareness की, experience की, now how can we make use of this for ourselves? मतलब इससे better क्या होगा? I think that might be the next question, या इसके आगे क्या है? नहीं, अभी तो ये हमने किया कि द यूनिवर्स को हमने कोलैप्स किया इनटू परसेप्शन। दिस इज व्हाट वी हैव रीच्ड Right. नाउ, करेक्ट, कि Right. यूनिवर्स परसेप्शन में जाता है, परसेप्शन फिर कोलैप्स हो जाता है अवेयरनेस के अंदर। तो अल्टीमेटली इट इज अगेन ड्राइविंग बैक टू द, ये अभी नहीं समझेगा, और अभी मुझे बताना भी नहीं है कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस। ये आगे Okay. समझेगा कि व्हाट ये सोच समझ के क्या। But once you understand that ठीक है. awareness is the main thing inside of which everything is happening, your worldview changes. Because जब Right. अगर तुम इस मोड से ऑपरेट करोगे कि ये पूरी दुनिया है और मैं इस दुनिया में हूं, तो यू विल बी इनसिग्निफिकेंट। तुम्हें छोटा महसूस करोगे खुद को पूरे दुनिया के सामने, एंड दैट विल हैम्पर योर कॉन्फिडेंस, दैट विल हैम्पर, बिकॉज दैट इज नॉट द ट्रूथ ना, यू आर एक्सप्लोरिंग व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रूथ। और अगर इतना ही आसान होता अल्टीमेट ट्रूथ को समझना, तो फिर मैं तो 10 मिनट में समझ जा देता, बट इट इज नॉट, अनफॉर्चुनेटली। Makes sense. Yeah. जब तुम्हें अल्टीमेट ट्रूथ समझेगा, देन यू विल बी फ्री। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि ये क्या है, बिकॉज द ट्रूथ विल लिबरेट यू। बट वो मैं तो ट्राई करूंगा पूरा बताने का, बट देयर शुड बी दैट इनर इंक्वायरी फ्रॉम इनसाइड ऑफ यू ऑल्सो, राइट, कि ये तभी बोल समझ रहा भी आएगा, वो Yes, ऐसे सुन के yes, नहीं आएगा। करेक्ट, तभी मैं मैं बोल भी रहा हूँ, मतलब क्वेश्चंस थे, और मेरे को अभी भी वो है कि आई रिफ्लेक्ट ऑन दिस, यस यस, और आई वांट यू टू, तब आई वांट पता यू टू। चलेगा अभी exactly. तुम्हें अभी वो थोड़े पहले दे कि इफ एनीथिंग दैट कैन बी नोन कैन नॉट बी द नोअर। कैसे? सपोज ये है एनीथिंग दैट इज नोन कैन नॉट बी द नोअर। अभी ये मैं हूं, ये मेरा हाथ है, ओके, इसको काट दिया, तो यहां से नीचे कुछ नहीं है, फिर भी मैं हूं ना, राइट। फिर तो दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस, सो दिस कैन नॉट बी मी। या दिस इज द ग्रेट एग्जांपल। ये इनर इंजीनियरिंग में भी एग्जैक्टली एग्जांपल देते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं क्राउड में, और एक बंदे को उठाते हैं कि हु आर यू, लाइक व्हाट डू थिंक यू आर, तो नाम बताता है अपना, कि आई एम दिस। तो नहीं, हु आर यू, कहता है आई एम दिस, आई एम अ ह्यूमन बीइंग। नहीं, बट एक्चुअली आप क्या हो? ह्यूमन बीइंग तो आपकी क्वालिटी है, राइट, आपका एक वो है कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन आप क्या हो? सदगुरु पूछते हैं उससे, एंड देन ही सेज कि आई डोंट नो। कहता ये जो मेरी, वो कहता कि ये जो मेरी बॉडी है, आई एम, हाउ टॉल आर यू, ऐसे पूछते हैं, आई एम 5'10". तो इस 5'10" आर यू, अगर आपकी पैर काट दें और ऐसा कर दे, देन यू वोंट बी 5'11", सो यू वोंट बी दिस, राइट। कहता हाँ, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर सदगुरु एग्जांपल देते हैं कि मान लो उस बंदे ने तुम्हारा हाथ काट दिया, तो आर यू स्टिल
नाम पता नहीं क्या था उसका, आर यू स्टिल दिस पर्सन, कहता यस आई एम स्टिल हियर, तो दोनों हाथ काट दिए, दोनों वो काट दिए, तब भी तुम हो ना, यू आर स्टिल देयर, तो तुम क्या हो? फिर वो एक्सप्लेन करते हैं ये सेम चीज कि वी आर नॉट दिस बॉडी, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू हैव Correct. टेकन दिस बॉडी फ्रॉम. तो दिस इज अ ग्रेट एग्जाम्पल टू बेसिकली मेक दिस पॉइंट Correct. कि this is not the observer, this is the vehicle of the observer, if that makes sense. Right. Yeah. Because वही है ना, whatever can be observed cannot be the observer. So I can Cannot observe be this. observer. Yeah, I can ये observe this. बहुत इंटरेस्टिंग है. Yes. Yeah. So the whole premise is this: whatever can be observed cannot be the observer. Wow. और हम लोग को वहां तक जाना है जहां पे हमें कुछ ऐसी चीज ही नहीं मिलेगी कि जो हम निकाल सकते हैं या जो हम ऑब्जर्व कर सकते समझ गया. हैं. ओके, तो अभी यूनिवर्स कोलैप्सेस Yeah. इनटू परसेप्शन अगेन कोलैप्सेस बैक इनटू अवेयरनेस. सो वी आर नॉट श्रिंकिंग रियलिटी, वी आर ट्रेसिंग इट टू इट्स फाउंडेशन. Right. So let us consider something important here. Science studies the structure of the universe. It maps galaxies, it measures particles, it describes forces. All of that knowledge is extraordinary. But even scientific knowledge appears as equations on paper, images on screen, thoughts in the mind. All of it appears in awareness. Right. So this does not weaken science in any way. It simply reminds us that knowledge itself has a base. Because everything, science is mapping the galaxies, it is measuring the particles, it is describing all these forces, and this knowledge is amazing. It is like really extraordinary. But scientific knowledge, how does the scientific knowledge appears? It appears in the form of equations on paper, numbers on a screen, right? Thoughts in the mind. Right. And all of it appears in awareness. This all knowledge appears inside of awareness. तो इट्स, तो साइंस भी अगर हम लोग देखेंगे तो इट रिमाइंड्स दैट नॉलेज इट ऑल्सो हैज अ बेस, एंड दैट बेस इज अगेन अवेयरनेस. देर इज समबडी Right. Yeah. अवेयर ऑफ द Yeah. साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स दैट दे आर डूइंग. ये तो बोलते भी है ना कि साइंस क्या है? साइंस इज नथिंग बट अ मीडियम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ Right. फिजिकल थिंग्स. राइट. That is science. Yes. And साइंस कुछ मतलब इन्वेंशन भी जो होती है वो इज बाय द यूज ऑफ सेम मटेरियल जो हमारी अर्थ पे है, उसी से ही अवेयरनेस के थ्रू उस लॉजिक लगा के थिंग्स आर मेड और But टेक्नोलॉजी इज मेड. इसमें सबसे साइंस के इसमें सबसे एक चीज क्या मिस कर देता है साइंस एक मशीन, मतलब द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऋषि मुनि एंड साइंस इज कि साइंस क्या करता है. सिंस साइंस इज एक्सटर्नल, इट इज ऑल वेस्टर्न, तो वो हमेशा बाहर ही गए एक्सप्लोरेशन में. तो साइंस क्या करता है कि मुझे अगर कुछ मेजर करना है तो मैं उसके लिए एक डिवाइस बनाऊंगा, फिर उस डिवाइस से उसको मेजर करूंगा, फिर मैं वो कंसिस्टेंसी Right. आती है कि नहीं उसमें देखूंगा उस एक्सपेरिमेंट्स में, एंड देन आई विल प्रूव माई थीसिस. बट ऋषि मुनि सेड नो. Right. ऋषि मुनि सेड कि आई डोंट नीड टू मेक अ न्यू डिवाइस, दिस इज द डिवाइस. जैसे मेरे Yeah. होने, इफ आई एम द प्रूफ ऑफ माई अवेयरनेस, यू आर द प्रूफ ऑफ योर अवेयरनेस, तो ये मशीन से ही मैं प्रूव करूंगा. सो इट इज दो सनातन टेक्स्ट नेवर से और आस्क यू टू बिलीव समथिंग. इट सेज कि यू हैव द डिवाइस टू Right. एक्सपीरियंस एवरीथिंग. एक्सपीरियंस एंड इंजीनियर इट. तभी ये सदगुरु का ना इनर इंजीनियरिंग है ये. इट्स नॉट आउटर या Correct. रेगुलर इंजीनियरिंग. इट इज इनर इंजीनियरिंग. Or I'm so happy कि they call it engineering and not some spiritual term, because that's what it is. You use tools to engineer something, to build something, to करेक्ट. make sense और practical use case हो उसका. तो जब internally आप करते हो तो I mean bro, मेरे को हफ्ते 10 दिन हुए हैं and I can see the difference कई 100%. चीजों में. I don't need alarm anymore. I can't imagine. अपने आप Yes. नींद खुलती है. That's Yes. what I wanted. मतलब ऐसी सी चीजें फिक्स होती हैं. और I don't know what will happen in the future. I'm looking forward to it. I'll नहीं, बहुत सही हो. share my experience. Yes. तो अभी if everything we know about the world comes through awareness, then awareness is not inside the world.
Right. If everything we know about the world comes through awareness, then awareness is not inside the world. The world as experienced appears inside awareness. The world experienced as experienced is appearing inside of our awareness. This is not a mystical claim. Hmm. This is just an observational statement that we are making. Right. और अभी हमने Right. प्रूव किया इसमें कि everything we know the external world appears is within the field of knowing. There is this field of knowing that we call awareness, inside of which all experiences happen. So this is the first major structural collapse in this model. The world is no longer the foundation. The world in itself becomes content. And when something becomes content, it cannot be the container. Correct? Hmm. The Yeah. world A itself. good example. Yeah. So, world is no longer the foundational this thing. The foundation is awareness, because inside of awareness the world appears. The world appears to be content, and whatever is content cannot be the container. We are the container. We are the container, and inside of which the world appears totally content. Wow. We are the vessel Correct. holding Yes. everything yes. that we know so far. Yes. Yes. Yeah. And if the world appears in awareness, then awareness cannot be the product of the world. At least not in direct experience. Okay, फिर से एक बार पढ़ता हूँ. If the world appears in awareness, then awareness cannot be a product of the world. अगर world is appearing Wow. inside of my awareness, then awareness cannot be the product of the world. तो वर्ल्ड से अवेयरनेस नहीं आ रहा है. अवेयरनेस. Yes. सही बैठ रहा है इसमें. Yes. Correct? Yes. So the world appears in awareness, then awareness cannot be the product of this world. अभी ना मेरे को हंसी आई थोड़ी सी. मैं सोच रहा था कि फॉर एग्जाम्पल पीपल हु डोंट नो अस, हु डोंट नो व्हाट दीज थिंग्स आर, वो देख रहे हैं, उनका तो दिमाग खराब हो गया होगा कि भाई क्या बात कर रहे हैं. राइट. उनका क्योंकि मतलब ये है कॉम्प्लिकेटेड चीजें, और मैं भी मतलब ऐसे सोचूंगा बाद में भी इसके बारे में काफी कुछ कि क्या कैसे क्या, और स्पेशली लॉजिक लगाने के बाद. Yes. और मैं ये जो बोल रहा हूँ ना, मतलब no, this is not for everybody. ये आधे घंटे में बोर हो जाएंगे. Not at all. Yeah. ये it is for advanced उनका seekers. दिमाग हो जाएगा, पेन करने लगेगा उनका दिमाग. हाँ. सर दर्द हो जाएगी उनके. हाँ. कि yes. But yeah, that's why it's not easy to understand, right? Not many people yes. can do it. Yes. As at least right now, we hope most people do understand this. Yes. Eventually, but मतलब मैं तो ट्राई तो कर रहा हूँ पूरा. जब मैं पढ़ रहा था और मुझे लगा था यार ये इससे इजी कोई नहीं एक्सप्लेन कर सकता, बट नाउ अभी मैं बता रहा हूँ, एंड आई एम गेटिंग दिस क्वेश्चंस फ्रॉम यू आल्सो, तो मुझे समझ में आ रहा है कि ओके, इट इज नॉट एज इजी एज आई थिंक ऑफ इट, बिकॉज ये मेरे इसमें से आया है, तो इसका लॉजिक मेरे दिमाग में ऑलरेडी है ना भाई. ये जो नॉलेज मेरे दिमाग में आता है, तो मैं इसमें से एक सेंटेंस, अगर द वर्ल्ड एज एक्सपीरियंस्ड अपीयर्स इनसाइड अवेयरनेस, अगर ये मैं सेंटेंस पढ़ता हूँ, तो इट मेक्स कंप्लीट लॉजिकल सेंस इन माई हेड टू मी. बट इट मे नॉट बी ट्रू फॉर एवरीबडी. तो वही तो है कि मुझे जब सिखाने का मेरे को तभी समझा कि लॉजिक क्या है, कि जब हम सिखा रहे होते हैं तो अपने लिए, बिकॉज आई नो इट इज वेरी ऑब्वियस फॉर मी टू फील कि अरे ये तो ऑब्वियस है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है. बट नहीं है. दैट्स द ट्रिकी पार्ट ऑफ टीचिंग. वो मुझे समझ में आया है बाद में. Yeah, but I appreciate, bro, you using the whiteboard and sharing this illustration. This really helps. हाँ. मतलब diagrammatically और ऐसे Diagram दिखा से, के yes. पढ़ा के ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है. Correct. People can, it's easier to understand when you visualize Yes. कोई चीज़ ऐसे. तो that's really good. Yes. So the world is no longer the foundation. It becomes content, and when something becomes content, it cannot be the container.
So if the world appears in awareness, then awareness cannot be the product of the world, at least not in direct experience. And सबका not in, at least not in direct experience, but सबका direct experience ही तो होता है. हम सब Yeah. लोग डायरेक्ट एक्सपीरियंस ही कर रहे हैं ना इंडिविजुअल लेवल पे. भले ही मैं देख रहा हूं बाहर True. उधर 4 लोग कुछ कर रहे हैं, बट वो 4 लोगों का तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस ही है ना. 100%. Yeah. तो we may have scientific theories about brain and consciousness, we may discuss neurons and chemistry, but even those explanations appear as thoughts in our awareness. We cannot step outside of awareness to verify it. मैंने बोला ना, वो डिमेंशन का लॉक है. ये डिमेंशन को हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते. जब वो बंदा डीएमटी लेता है या कोई भी लेता है, तो इसमें भी अवेयरनेस डज नॉट गोज अवे. यू आर जस्ट अवेयर बट एट अ डिफरेंट लेवल, एट अ डिफरेंट, वो तुम्हारे बस अवेयरनेस का सेटिंग्स चेंज कर देता है. दैट्स इट. दैट्स वाई यू गेट, तुम्हारे सेंसेस बदल जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट वॉट एवर ड्रग यू हैव टेकन. एंड यू जिसको तुम्हारा परसेप्शन बदल जाता है. बेसिकली यू आर टेकिंग साउंड, तुम्हें और अच्छे से आ रहा है, आई विजुअल्स तुम्हें और ब्राइट दिख रहा है. तो इट्स द सेम वर्ल्ड, ओनली योर परसेप्शन चेंजेस इन दैट during that time also, because you have changed the chemistry inside of you. तो that only तुम्हारे अवेयरनेस के साथ वो खिलवाड़ करता है. That's it. Okay, so we cannot step outside awareness. Is the primary, is the foundation. Awareness is the key to everything. तो we cannot step outside of awareness to verify it. We are the verification for awareness. हम जब बोलते हैं आई एम अवेयर या आई बोलते हैं, तो हम प्रूव करते हैं कि वी आर अवेयर. राइट. सो दैट द अवेयरनेस इज प्रूफ फॉर इटसेल्फ. जो आदमी अवेयर है वो अपने आप, इट इज ऑलरेडी प्रूवन कि अवेयरनेस एग्जिस्ट. राइट. सो फॉर द पर्पज ऑफ इंक्वायरी अवेयरनेस रिमेन्स प्राइमरी. अभी जो हम इंक्वायरी करने वाले हैं. सो दिस कोलैप्स हैज कॉन्सिक्वेंसेस नाउ. When we begin with the world, we feel small. We feel defined by circumstances. We feel like fragments inside a vast system. But when we trace experience inwards, we see that the vast system appears within the field of knowing, within the field of awareness. जिसको हम जो छोटा समझ रहे हैं खुद को. तो the vast system appears. when we begin with the world, we feel small. अगर हम बाहर से शुरू करते हैं दुनिया से, तो हम छोटा महसूस करते हैं. जैसे मैंने पहले भी बोला कि इतना बड़ा दुनिया है, इतनी बड़ी यूनिवर्स है, उसमें से हम इतने से टुच्चू से है, तो हम छोटा महसूस करते हैं. बट जब हम अवेयरनेस के लेंस से देखते हैं, तो भाई तो हम ही तो हैं बस, और कोई नहीं है. बस हम ही हम हैं हमारे लिए, हर एक इंडिविजुअल के लिए. That's it, yeah. और कोई नहीं है वो. So the vast system appears within the field of knowing. The psychological weight begins to shift. ये सब साइकोलॉजिकल वेट है जो हम लेके चल रहे कि इस पूरी दुनिया में मैं छोटा सा हूं, मेरा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, आई एम नॉट इम्पोर्टेंट. और ये एक बन जाता है हमारे अंदर, और वो भार जो है वो हम लेके चल रहे होते हैं जिंदगी भर. एंड दैट इज व्हाट इज कॉजिंग अस सफरिंग. वी आर सफरिंग जस्ट बिकॉज वी डोंट नो द गेम. The world does not disappear. Mental diarrhea. Yes. The world does not disappear here. But its position changes. अगर तुम दुनिया में नहीं, दुनिया तुम्हारे अंदर है, तो फिर सब कंट्रोल तो तुम्हारे पास है ना. अगर तुम्हारे अवेयरनेस से दुनिया बन रही है, तुम्हारी दुनिया, तो यू हैव ऑल द कंट्रोल. तो फिर तुम्हें कुछ रोक ही नहीं सकता ना. What is there to be afraid of? The only thing that can stop us or restrict us is our thinking, our own blockage that we think we have. Yes. Our own limitation in Correct. our mind. Correct. जो कि non-physical है, it's mental. Yes. It's not real.
करेक्ट, इट्स मेंटल, Makes sense. इट्स मेंटल। जो दुनिया हम बोलते हैं कि ये दुनिया, इट्स ऑल मेंटल। Right. Wow. तो Crazy. दिस ब्रिंग्स अस कि या अभी हमने दुनिया को कोलैप्स किया, तो व्हाट इज द वर्ल्ड? वर्ल्ड इज जस्ट अ परसेप्शन, Mhm. हमारा परसेप्शन, जिसको हम वर्ल्ड बोलते हैं, दैट इज Mhm. नथिंग एल्स बट आवर ओन परसेप्शन, दैट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ मेमोरी एंड इमेजिनेशन, एंड उससे हम लोग पूरी दुनिया को, वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करते हैं, विच इज हैपनिंग अगेन इनसाइड ऑफ आवर अवेयरनेस। परसेप्शन Right. से परसेप्शन से एक्सपीरियंस आता है, एक्सपीरियंस अवेयरनेस ऑब्जर्व करता है। तो Mhm. इन दिस वर्ल्ड, इफ द वर्ल्ड द नाउ वर्ल्ड, तो पूरा जो है एक्सटर्नल वर्ल्ड इज जस्ट आवर परसेप्शन, इतना तो हमने पता चल गया। अभी ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, हमारे लिए एक्सटर्नल वर्ल्ड इज ओनली अ परसेप्शन ऑफ आवर रियलिटी। तो वर्ल्ड पूरा कोलैप्स हो गया है इनटू परसेप्शन, एंड फिर अगर पूरी दुनिया एक परसेप्शन है, देन व्हाट हैपन्स टू आवर सोशल आइडेंटिटी? नाउ वी आर गोइंग नेक्स्ट टू दैट। पहले तो द स्टार्टिंग मिस्टेक, लुकिंग आउटवर्ड फॉर आइडेंटिटी। पहले हम लोग आउटवर्ड देख रहे थे, फिर हमने समझा कि आउटवर्ड भी अगर देखेंगे तो अवेयरनेस कम्स फर्स्ट, क्योंकि वो हमारा नेचर ऑफ डिफॉल्ट नेचर ऑफ एक्सपीरियंस है कि अवेयरनेस से सब कुछ होता है। फिर अवेयरनेस में हम अवेयर है अबाउट द वर्ल्ड, हम लोग बोलते हैं कि ये दुनिया, वी आर अवेयर अबाउट द वर्ल्ड। तो हमने देखा कि ये दुनिया, ये यूनिवर्स क्या है? तो द यूनिवर्स इज बेसिकली जस्ट अ परसेप्शन ऑफ आवर सेंसेस, परसेप्शन जो बिल्ड होता है बिकॉज ऑफ आवर सेंसेस एंड आवर इंटरेक्शन विद द एक्सपीरियंस, एंड जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है वो बन गया। तो इसके बाद अभी हम लोग जाएंगे कि व्हाट हैपन्स टू आवर सोशल आइडेंटिटी। अगर पूरे दुनिया एक परसेप्शन है और मैं सब मेरे अंदर से हो रहा है, तो फिर जो मेरा सोशल सेल्फ है, जो मेरे रोल्स है, लेबल्स है, कंडीशनिंग है, उसका क्या? तो बेसिकली वही है So, कि इसमें हमने अभी से पूरा देखा कि हम सबसे पहले तो जब जिंदगी में आते हैं तो वी लुक आउटसाइड, एंड देन वी स्टार्ट इन आवर जर्नी ऑफ फाइंडिंग आवर सेल्फ इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड। right. हम Right. दुनिया को प्राइमरी और खुद को सेकेंडरी समझते हैं। फिर हमने समझा कि जो भी पूरी दुनिया हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, वो पूरी हमारी अवेयरनेस से आती है। जो भी हम, द प्राइमरी थिंग इज अवेयरनेस, एंड बाकी जो भी Right. है वो सारा दूसरा है, दैट इज सेकेंडरी। तो फिर Right. वो हमने देखा। फिर हमने देखा कि uh, जो जो जिस यूनिवर्स, हम जिसको यूनिवर्स या दुनिया बोलते हैं, दैट इज जस्ट अ फिल्टर्ड वर्जन ऑफ आवर परसेप्शन, जिसको हम बोलते हैं, Mhm. जो फिल्टर होके आता है और हमारे परसेप्शन से हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं। Right. और इसके बाद वाला पार्ट है कि अगर द वर्ल्ड या यूनिवर्स कोलैप्सेस डाउन टू आवर परसेप्शन, देन व्हाट हैपेंस टू आवर सोशल आइडेंटिटी? वो हम लोग करेंगे Hmm. नेक्स्ट इसमें। फिर उसमें उसके बाद सही. सोशल आइडेंटिटी हम लोग ये करेंगे। सोशल आइडेंटिटी के बाद फिर साइकोलॉजिकल पार्ट आता है, Hmm. बिकॉज सोशल आइडेंटिटी Okay. में आएगा तुम्हारा नाम, रिलीजन, प्रोफेशन, Hmm. फैमिली रोल, वो सारी चीजें। Mm-hmm. फिर साइकोलॉजिकल में आएगा तुम्हारा माइंड, मेमोरी एंड पर्सनैलिटी। Mm-hmm. फिर उसके बाद आएगा तुम्हारा सटल ईगो। सब कुछ निकालने के बाद भी देयर इज अ सेंस ऑफ आई दैट रिमेन्स, दैट इज द फाइनल बॉक्स। Mm-hmm. और फिर आएगा द फाइनल लॉ ऑफ कोलैप्स, द ऑब्जर्वर प्रिंसिपल। फिर आएगा फाइनली हम लोग डिस्कवर करेंगे कि क्या बचा। अगर ये सब कुछ हमने निकाला तो व्हाट रिमेन्स, एंड दैट इज द Mm-hmm. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाट रिमेन्स। क्योंकि Nice. व्हाट रिमेन्स से ही आगे की जर्नी शुरू हो, बिकॉज दैट Interesting. इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट रिमेन्स। यस। Chalo, Yes. let's wrap up. Yes. For viewers, thank you for tuning in. I don't know how many people are still with us, but we appreciate you. Thank you, Supreet bro, for coming My up with this pleasure. insane idea of breaking down the existential question and all the layers.
So I'm very excited for this series, and we will record the second one next week. Yeah. Weekly basis pe we are thinking to do it. So viewers, if you are new here, please subscribe. I hope this wasn't that heavy. This is heavy shit, but we are trying to break it down, and Supreet bro has his white board, so this really helps. Yes. So I'm sure this has helped you as well. So yeah, that's it for today. If you want to check out our other podcasts, we have talked about a whole lot of things about spirituality and all sorts of different topics. So explore our channel, and yeah, we'll be here. We'll be seeing you next time. Thank you. Chalo, bye bye. Take care, guys. Namaste. Namaste.